everyone and welcome to this video. टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं. I get this question a lot, also on social media. Sometimes the people who know that I am married, and also from the people who are in my affinity, who keep asking me, यार कि इतनी जल्दी शादी क्यों? You had this गुड करियर जहां पे तुमने चीजें स्टार्ट करी थी. 18 के बाद तुम एक डिफरेंट फील्ड में आ गए, एंड नाउ it's almost half a decade in this particular field. So why you're getting married early? You should have delayed this, and तुमने बाकी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए था. You should have made more money. My friends used to say this, you should focus more on your career. My relatives also used to say me कि यार ये लड्डू नहीं खाओ, क्योंकि ये लड्डू इस तरह का होता है ना कि जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता है ना वो भी पछताता है. तो आई यूज टू से कि कोई बात नहीं, मैं खा के पछताना चाहता हूं. So I get this question a lot, and today I just want to talk about this thing, not because I want to say कि मैंने शादी कर ली है, but because I think and I believe on this thing that everyone should get married early. That's the thing that I believe in, and I believe कि तुमने मैरिज को डिले नहीं करना चाहिए. And for you, the best age to get married is the age that I got married in. So currently I'm 23. I got married at the age of 22. Not अभी एक साल तो नहीं हुआ, but कुछ महीने ही हुए हैं. So here are a couple of things which I want to talk about. सबसे पहली चीज तो यार, जब मैंने एट द एज ऑफ 18 जब मैंने स्टार्ट करा ये अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, तो कोई थॉट प्रोसेस तो था नहीं कि शादी भी करनी है, कुछ ऐसा था नहीं माइंड में. आई स्टार्टेड दिस, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा, पैसा बनाना स्टार्ट करा, एवरीथिंग जस्ट चलने लगा. वहां से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुई, वहां से सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट हुई, वहां से प्रोडक्ट बिल्डिंग स्टार्ट हुई, एंड यू जस्ट आई स्टार्टेड डिवर्सिफाइंग इन डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. ना हुआ क्या ना कि एक दिन अचानक आई हैड दीज थॉट्स, कि भाई I think I should have my own family. And by my own family, I don't mean that my family doesn't love me. I have like a good family. But the thing is कि I was like यार नहीं, ये चीज लाइफ में करनी तो है ही, आज नहीं तो कल करनी ही है. People get married at the age of 26, 27, 30, 25, even 40. But I was like कि नहीं यार, मेरे को I want to have kids. I just want to have someone to look up to. I just want that sense of feeling of building my own family, building my own tribe, building my own next generation. I wanted this sort of feeling too. And also at the same time I was like कि delay करना is not a good thing, because I was able to realize कि यार most of the generation nowadays are getting fucked up. Why? Because वो उस लस्ट के चक्कर में ना इतना अपने आप को बर्बाद कर देते हैं ना, और वो इतना खराब कर देते हैं सिचुएशन को अपनी लाइफ की मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह के. लकीली, थैंक गॉड कि मैं उस तरह का इंडिविजुअल नहीं था. मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी इन, I used to do things here and there, God forgive me. But for a long amount of time, I was not doing any sort of thing. I was just totally focused on my career. 11, 12, I was totally focused on my career. उसके बाद भी 3-4 साल इस फील्ड में I was like नहीं, I don't want to commit anywhere, and I don't want this girlfriend boyfriend thing. मेरे को उस चीज से दूर रहना है. First, this is waste of time, and second, it is not permitted, in our religion. So I need to stay away from this sort of thing. एंड फिर तुम रियलाइज करते हो कि नहीं यार, अगर मेन हो तुम्हें विमेन की तरफ अट्रैक्शन होती ही होती है. So why not channelize that attraction the right way, जहां पे you get married to a very you get married to a good individual जो कि तुम्हें सपोर्ट कर सके, तुम्हारी आगे फैमिली को बिल्ड कर सके, who can nurture you, nurture your kids and everything around that. And I was like, I think this is a good thing for me, जो कि मुझे करनी चाहिए. And then from there I started into this thing कि चलो ठीक है, ये चीज जो है ना वो डन कर लेते हैं. चलो ये तो हो गया मोटा मोटा जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, सारा मैंने डिटेल में नहीं बताया. नाउ हियर इज द थिंग ओवर हियर. मुझे जो लगता है ना कि आज के टाइम पे हर एक बंदा जो है ना वो मैरिज को डिले कर रहा है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल एंड टू हैव सेक्स. It's very easy to do those sort of things, and it is very easy कि तुम एक नहीं, तुम 10 लड़कियां एक टाइम पे रख के अलग अलग लड़की के साथ you can sleep.
इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी। एंड इतना जब इजी बन चुका है ना, तो जो मैरिज का एसेंस है ना, वो किसी के अंदर रहा ही नहीं है। क्यों? कोई कोई इंसान जिसके पास इतने ऑप्शंस आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, वो क्यों शादी करेगा? उसके पास तुम रीजन ही नहीं रख रहे हो ना शादी करने का, क्योंकि हमने ऑब्वियसली, तुमने नहीं, हमने वो चीजें इतनी ज्यादा आसान कर ली हैं दैट हमने आज के टाइम पे शादी को डिफिकल्ट बना दिया। गेटिंग मैरिड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। You need to have 10-15 lakh rupees to get married, but for you to get into a relationship and to commit zina, or to have sex to do sex with those individuals, it has become very very easy. It doesn't cost you like literally nothing, 1000 2000 या 500 रुपया, it's literally nothing, it's peanuts, as compared to you getting married. It's a lot. तो ऑब्वियसली हर एक बंदा एक इजी वे ढूंढता है, ठीक है ना। और आज के टाइम पे जो ये इतनी बातें सर्कुलेट हो रही है ना, कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना जरूरी है बिफोर यू गेट मैरिड विद देम, तो ये चीज और चीजों को खराब करके रख देती है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा सोचता है कि नहीं यार, मतलब अपने आप को रीजन देता है ना। मैं कहता हूं ना, मैं ये चीज बहुत बार रिपीट करता हूं कि हम में से ना हर एक बंदा ना अपने आप को रीजन देता है कोई गलत चीज करने के लिए। हम अपने आप को रीजन देंगे कि नहीं यार, ओके मेरे को शादी करनी है, बट ना देयर बाइसेप्स ने कहा है कि यार you should get into a relationship and you should have 2-3 years in a relationship and you get to know that individual very very well, and तभी तुम उस individual के साथ commit करो। bullshit, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। you don't need 2-3 years to get to know the individual। तब तो 2-3 साल में तो सारा तुम बच्चे कर लो दो यार, जितनी साल में तुम किसी को जानने में लगा रहे हो। ऑब्वियसली before you get married, even if it's an arranged marriage, you should spend time with that individual। तुम उससे बातचीत करो, अच्छे से उसको समझ लो, अच्छे से जान लो, चाहे तुम जितनी बार मिलना चाहते हो मिल लो, बट आई थिंक यू शुड नॉट मीट अलोन। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आई थिंक मीट यू शुड हैव वन इंडिविजुअल जो कि तुम्हारे साथ हो, एंड यू शुड देन मीट, बिकॉज जब तुम दो जब अकेले मिलोगे ना, तो तुम मिलोगे कम और तुम नेक्स्ट चीजें कुछ प्लान करना शुरू कर दोगे, एंड देन वो जो तुम शादी के वे में जा रहे थे, वो तुम उस चीज को कहीं और ही लेकर जो है ना वो चले जाओगे। तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट थिंग। एंड होता क्या है ना, कि आज के टाइम पे इतना ज्यादा ये चीज कॉमन हो गई ना, कि कोई भी बंदा मैरिज के लिए, मैं वही कह रहा था ना, क्यों जाएगा? उसके पास रीजन ही नहीं रखे हैं, क्योंकि उसको दिखता है कि यार अगर मेरे को शादी करनी है, मेरे को 10 लाख 15 लाख चाहिए होगा ये सारी मैरिज का प्रोसेस डन करने के लिए। एज कम्पेयर टू दैट, उसको पता है कि यार लड़की के साथ बात करना, उसको फंसा के बात करना उससे बहुत ज्यादा ईजी है। सेक्स मेरे को मिल जाएगा, बात मैं कर लूंगा, टाइम मेरा पास हो जाएगा। अभी 22 23 25 का भी अगर मैं हूं, तो मेरे को क्या करना है? अगले 5 साल में ऐसे ही निकालता हूँ ना, 30 में जाके देखेंगे। जब वो 30 में पहुंच जाते हैं, फिर उन्होंने इतनी ज्यादा बातें कर ली होती हैं लड़कियों के साथ, इतना ज्यादा सेक्स इनको अबंडेंट में मिल जाता है कि नाउ दे फील लाइक क्या ही करूंगा शादी करके यार, बच्चों के लिए शादी करूंगा, अरे नहीं मुझे बच्चे नहीं करने हैं। और बच्चों का कंसेप्ट तो ऑब्वियसली खत्म ही कर रहे हैं, वेस्टर्न से तो खत्म ही होता जा रहा है कि having kids, you should adopt kids, तुम्हें किड्स करने की कोई जरूरत नहीं है, and all that bullshit, ये तो चलती ही आ रही है। तो उस वजह से उसका मोटिवेशन और खत्म हो जाता है। और फिर सफर कौन कर रहा है? सफर कर रही है लड़कियां, ठीक है, सफर कर रही है लड़कियां। लड़कियां क्यों सफर कर रही है? आओ तुम्हें बताता हूँ। वो लड़कियां जो कि खुद शादी नहीं कर रही हैं, एंड वो 30 तक अगर शी इज नॉट गेटिंग मैरिड, 30 के बाद तो उसकी लाइफ ऐसे भी खत्म होना स्टार्ट हो रही है ना। 30 के बाद तो वो कम खूबसूरत रहेगी, और अभी जो आज की जो 15 साल की है, 20 साल की, 25 साल की, वो तो ज्यादा खूबसूरत रहेंगी। फिर 30 के टाइम पे जो उस टाइम पे उसको हूर परी समझते थे, उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, उससे मिलते थे, उसको डेट्स पे लेके जाते थे, वो जब वो 30 की हो गई है, उसको तो अब कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि अब तो वो बूढ़ी होना शुरू हो चुकी है ना। क्योंकि देखो, इट्स दी थिंग ओवर हियर। 30 के बाद वुमेन की लाइफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर देन इट्स ऑल अबाउट कि तुम जितना मेकअप थोप सको और तुम अपने आप को खूबसूरत दिखा सको। बट दी बेस्ट एज जहां पे तुम बहुत ज्यादा अच्छी दिखोगी, वो है तुम्हारी 15 से लेके 25 28 29 30 तक, ठीक है ना। उसके बाद तो तुम्हारा काइंड ऑफ यू कैन कंसिडर कि तुम कम खूबसूरत दिखना स्टार्ट हो जाओगी। जब वो चीज होना शुरू होती है, तो तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है। अब तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है, तो तुम्हें फिर रियलाइजेशन होती है कि अच्छा यार, मुझे ना उस टाइम पे आई शुड नॉट बी इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स। मैंने जो भी 50-60 रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों के साथ, और मैंने हर एक के साथ आई हैड सेक्स, तो तुम तब रियलाइज करती हो एट द एज ऑफ 30 कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। एंड फॉर मेन, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो तो मेन क्रिएट कर रहे हैं ना।
वाई? बिकॉज ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले कर रहे हैं, क्योंकि गेटिंग मैरिड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। देखो ना, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वाइफ की, पहले तो मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना फिर भी इंसान थोड़े टाइम के लिए ना पीछे इधर उधर हो सकता है। क्यों? बिकॉज यू नो यू हैव योर फादर, यू नो, तो तुम पता है कि यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है। बट व्हेन इट कम्स टू योर वाइफ, यू नो कि तुम्हारी सोलली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी नीड्स को पूरी करना, सब चीजों को देखना, सब चीजों को समझना, मल्टीपल चीजों को हैंडल करना। उसके बाद शादी करना इज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क। यू नो, यू नीड टू हैव एटलीस्ट, आई थिंक एट दिस एज 10-15 लाख इज द बेयर मिनिमम यू नीड टू हैव टू गेट मैरिड। आई नो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हम एक अलग टॉपिक रखेंगे किसी वीडियो के लिए, बट इट इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू हैव टू गेट मैरिड। एंड जब हम इंसान वो चीजें देख रहे हैं ना, आज के मर्द जब वो चीजें देख रहे हैं तो वो भाग रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, वो आउटसाइड सेक्स कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स टू हैव सेक्स, एंड सब चीजें तो खत्म ही हो रही है ना। एंड जो जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, लेट्स से तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और आज के टाइम पे तो एंगेजमेंट ही बहुत ज्यादा चीजें खराब कर रही है। ये तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम फिर जो है तुम्हारी 2-3 साल एंगेजमेंट चल रही है, अब तुम्हारा मन तो ऑलरेडी उस इंसान से भर चुका है ना, 2-3 साल तुमने बात कर ली है, 2-3 साल तुमने इतना ज्यादा सेक्स कर लिया है, तुम्हारा मन तो ऑलरेडी उस इंसान से भर चुका है। अब तुम जब शादी करोगे भी ना, तो तुम उतना ज्यादा वो लव एंड वो केयर वो प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे। तुम क्यों? वाई? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि तुमने ऑलरेडी इतना ज्यादा एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर लिया है कि तुम्हारा स्टार्टिंग वाला फेज जो वो शादी के बाद का बहुत ब्यूटीफुल रहना था, वो ब्यूटीफुल होता ही नहीं है। एंड देन यू सी के यार मैंने क्यों ही करी शादी यार, इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक था। एंड दैट इज द टॉक व्हिच एवरीवन इज हैविंग नाउ डेज। यू नो, यू सी ऑल दिस इन्फ्लुएंसर्स कमिंग आउट, जिनके डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, 1 साल बाद डिवोर्स हो जा रहा है, शादियां कर रहे हैं, 2 महीने बाद डिवोर्स हो जा रहा है, लड़की पैसा लेके फरार हो रही है, इतनी प्रॉपर्टी उसके हिस्से आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब चीजों से ना मैन डर रहा है। डरना जायज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डरना जायज नहीं है, डरना जायज भी है, बट तुम इस चीज को भी तो समझो ना कि तुम गलतियां कर रहे हो। तुम अगर जल्दी शादी करोगे, यू विल हैव बेटर सपोर्ट, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। नाउ लेट्स कम टू द मेन रीजन व्हाई आई गॉट मैरिड। सबसे पहले तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मुझे लाइफ में ना आई नीड टू डू दिस थिंग, मेरे को शादी करनी है ना, मैं इस चीज को डिले क्यों करूं? आई डिड माई रिसर्च कि बेस्ट एज क्या है टू गेट मैरिड, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई रियलाइज्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स कि व्हिच इज कि बेस्ट एज तुम्हारे लिए शादी करने के लिए, आई वुड से, यू नो, हियर इज माय सेइंग्स ऑन दिस। फॉर गर्ल्स आई थिंक द बेस्ट एज इज 18 to 23-24 is the best age for girls, for women to get married. I think all girls should get married from 18 to 24 से पहले पहले they should get married. I think this is the best age जहाँ पे you can have very good किड्स, तुम उनकी अच्छी तरह से आप ब्रिंगिंग कर सकते हो, तुम खुद अच्छी तरह से फ्लरिश हो सकते हो, तुम अच्छी तरह से एक दूसरे को केयर, लव, रिस्पेक्ट, यू कैन प्रोवाइड दैट। फॉर मैन आई बिलीव 21 से लेकर 26 से पहले पहले 30 तक भी तुम जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से 21 से 26-7 तक men should get married। एंड मैं 21 इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज इंडिया में लीगल एज इज 21, ठीक है ना, फॉर मैन। तो 21 से 27 तक यू शुड गेट मैरिड। आई थिंक ये दायरा तुम्हें रखना ही रखना कि इससे पहले मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब मैं जब 21 का था तो आई डिसाइडेड कि मेरे को शादी करनी है, एंड देन थोड़ा उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड किससे शादी करनी है, कैसे क्या है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, एंड इट टुक मी लाइक 1.5 years, एंड देन आई गॉट मैरिड। नाउ हियर इज द थिंग ओवर हियर, मैंने ये चीज रियलाइज करी कि यार अर्ली इज द बेस्ट, अर्ली इज द बेस्ट, बिकॉज एट दैट टाइम तुम अपने पीक पे होते हो, ठीक है ना, तुम हर एक चीज में अपने पीक में होते हो। अगर तुम लाइफ में ज्यादा चीजें खुद ही एक्सपीरियंस कर लोगे ना, और अगर तुम लाइफ में खुद ही सब कुछ अलग अलग लड़कियों के साथ रह के एक्सपीरियंस कर लोगे, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे ना, तो तुम कभी भी ना अपने पार्टनर को उतना लव प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे, एंड फिर तुम्हें आदत हो जाएगी जगह जगह मुंह मारने की। और जिसको जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है ना, फिर वो शादी के बाद भी एक्सटर्नल मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो चीजें तब्दील हो जाती हैं। एंड you see women having extramarital affairs, you see men having extramarital affairs, and I know there are men and women जिनको पता है कि उसका भी चक्कर चल रहा है, मेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, मेरे पति का भी चक्कर चल रहा है, and they are very comfortable in that। Why? Because they don't care about this thing, उनको है कि मेरे को मल्टीपल चाहिए बात करने के लिए, मेरे को मल्टीपल चाहिए to do that sort of stuff। तो that's why it sort of चीजें इस तरह से हो जाती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि भाई दिस इज द एज एंड दिस इज व्हाई आई गॉट मैरिड, एंड आई वांट टू हैव किड्स यार, आई वांट टू हैव किड्स, आई वांट टू रेज माय किड्स, आई वांट टू होम स्कूल देम। मेरे को नहीं भेजना है अपने बच्चों को इस ऑर्डिनरी एजुकेशन सिस्टम में। आई एम 23 years of now, and whenever I will have kids, I will homeschool them, homeschool करूंगा उनको मैं। I will not send them
टू दिस ऑर्डिनरी स्कूल्स, इस एजुकेशन सिस्टम में तो उनको मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। उनको मैं दीन की एजुकेशन सिखाऊंगा। एंड आई वुड वांट एवरी चाहे जिस भी रिलीजन से तुम हो, अपने बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में जरूर तुम सिखाओ। दैट्स द थिंग दैट आई वुड डू। एंड एट द सेम टाइम आई वुड गिव देम एजुकेशन, बट होम स्कूलिंग करा के मैं उनका एजुकेशन जो है मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, ना कि स्कूल भेजकर। दैट्स वन थिंग दैट आई वुड नेवर गोइंग टू डू। उसके बाद उनको ये मतलब ये इंजीनियर एंड ऑल दैट, आई वुड, मैं इस डायरेक्शन में तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। आई विल हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन, वो आई विल मे नॉट बी रिवीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस इज समथिंग दैट आई विल बी डूइंग। बट एट द सेम टाइम देखो, तुम्हें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। ये कहना बहुत आसान है कि शादी कर लो, बट उस चीज को ना पालना पड़ता है तुम्हें। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें एक चीज, काफी ज्यादा लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो शादी कर लेते हैं, बट वो शादी करने के बाद ना जब वो बच्चे कर लेते हैं ना, तो वो बच्चों को नर्चर करते हैं पर अपनी वाइफ को नर्चर नहीं करते हैं। तो एट द सेम टाइम ना, जब तुम शादी कर रहे हो ना, तुम्हें खुद को नर्चर करना है। तुम्हारी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए, बट तुम्हारी वाइफ की भी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम उसको नल्ली बना के रख रहे हो, तुम बस जितनी उसकी माइंड की ग्रोथ हुई है, तुम उसकी माइंड की ग्रोथ को रोक दे रहे हो। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है वो तुम्हारी माँ के ऊपर डिपेंड करेगी बहुत हद तक। चाहे तुम जितना भी सपोर्ट करो, तुम्हारी माँ के ऊपर डिपेंड करेगी। और अगर तुम उसको नर्चर नहीं कर रहे हो, तुम उसको लाइफ में ग्रो नहीं करवा रहे हो, तुम उसको नहीं एजुकेट कर रहे हो और ज्यादा, तुम उसको अगर एजुकेट नहीं कर रहे हो, तो वो पीछे रह जाएगी। अगर वो पीछे रह जाएगी ना, तो तुम्हारी जो नस्लें है ना, तुम्हारी जो जनरेशन है, वो पीछे रह जाएगी। इसलिए तुम अपनी वाइफ को भी नर्चर करो, खुद को भी नर्चर करो, एंड किड्स को भी तुम नर्चर करोगे ही करोगे, ऑब्वियसली तो ये चीजें होती हैं ओवरऑल, एंड आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड कंसिडर थिंग्स।